بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہودی توحید کے علم بردار تھے۔ انہوں نے ملک شام میں خدا پرستی کا چراغ اس وقت جلا یا جب یہ قال تمام دنیا اس نام پستی میں گرفتار تھی۔ وہ اپنے معبود کو ہوا کے نام سے یاد کرتے تھے جو ابراہیم، اسحاق و یعقوب کا خدا تھا اور بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھوڑا کر لایا تھا۔ وہ ازلی اور ابدی حاضر ناظر جی و قیوم تھا۔ اس نے تمام علم اور من مخلوقات کو اپنے حکم سے پیدا کیا۔ فرشتے اس کے تابعدار، چاند سورج بستارے تابع فرمان۔ اس کی حکومت و قدرت میں کوئی شریک نہیں۔ وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے۔ اپنے محبوب پرستاروں کو حضرت موسیٰ کی معرفت اس نے حسب ذیل 10 احکام منائے۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، تواں کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، بے فائدہ نہ لینا اور جھوٹی قسم نہ کھانا، خدا دندہ اپنے خدا کا نام، تو سبت کا دن پاک ماننا اور اس دن کوئی کام نہ کرتا۔ 5 تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، تو خون نہ کرنا ہے، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا۔ جب تم ہمسایہ کے پاکستان میں جاؤ تو جتنے اگر چاہو پیٹ بھر کر کھا، مگر کچھ برتن میں رکھ لینا، چکی کے پاٹ کو کوئی گرد نہ رکھے، کیونکہ یہ آدمی کی جان کو رہن رکھنے کے برابر ہے۔ یہ آدمی جان وہ رہن رکھے، مذہب سیود کا لب لباب اس حکم میں ہے۔ خدا وند بہارا خدا، ایک وہی خدا وند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خدا وند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ عبادت خانہ بر تسلیم کا تفصیلی بیان عہد نامہ عتیق میں موجود ہے، مگر اس کو نقل کرنا بھی رہی عبادت، کیونکہ اب عمارت کا کوئی حصہ سوائے ایک دیوار کے باقی نہیں ہے، اور وہ دیوار فلسطین کے باشندوں کے درمیان فتنہ و فرہاد کی بنیاد ہے۔ البتہ یہ واقفیت مفید ہے کہ اس عبادت گاہ میں ایک قربانگاہ سوختنی قربانیوں کے لیے مخصوص تھی۔ ایک حوض تھا جس میں درگاہ کے خدام فرائض منصبی کی بجا آوری سے پہلے ہاتھ اور پانوں رہویا کرتے تھے۔ ایک میز تھا جس پر 12 بے خمیر کی روٹیاں 2 قطاروں میں ہر وقت رکھی رہتی تھیں، اور بخور جلتے تھے۔ سبت کے دن وہ روٹیاں اٹھا لی جاتی تھیں، خدام ان کو کھاتے تھے اور دوسری روٹیاں ان کی جگہ رکھ دیتے تھے۔ عبادت گاہ میں ایک شموران تھا جس پر ایک چراغ دترات روشن رہتا تھا۔ یہود کی عبادت زیادہ تر قربانی اور نیاز کی صورت میں ہوتی تھی۔ دعا اور استغفار کو زیادہ اہمیت نہ تھی، البتہ تلاوت تورید کی سخت تاکید تھی۔ نیاز اور کفارہ گناہ کی قربانی میں جانو و بہکے جاتے تھے، مگر شکرانہ کے طور پر نباتات کی بھی پیشکش ہو سکتی تھی۔ قربانیوں کے ساتھ عموماً غلہ کی کوئی قسم بھی ہوتی تھی، اور شاب یا کوئی دوسری پینے کی چیز بھی حاضر کی جاتی تھی۔ قربانی صرف گائے، بیل، بھیڑ، بکری کی درست تھی۔ ہرن اور چیل وغیر کی قربانی جائز ہے بھی۔ پرندوں میں فاختہ اور کبوتر بھی قربانی کے لیے لائے جاتے تھے، مگر مچھلی ممنوع تھی۔ نباتاتی نیاز میں آ گیا یا بنا ہوا لے ہوتا تھا، جو کہ بالی عید فطر کے وقت یوں عید جم زیتون اور انگور عین ایم میں پیش ہوتے تھے۔ نباتاتی نیاز کے ساتھ شراب اور تیل ضروری تھے۔ نمک ضرور شامل کیا جاتا تھا۔ نظر کے لیے اناج کم از کم اس قدر ہونا چاہیے کہ ایک شخص کی ایک دن کی خوراک کے لیے کافی ہو۔ شراب یا کوئی اور نشہ آور چیز عبادت گاہ میں استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ شراب ندر میں آتی تھی، اس کا ایک حصہ آگ میں ڈالا جاتا تھا۔ قربانیاں روزانہ ہوتی تھیں اور آگ قربان گاہ میں ہر وقت موجود رہتی تھی۔ نظر کی قربانی ملم جلائی جاتی تھی، اور دوسری تمام کی قربانیوں کا صرف ایک حصہ جلایا جاتا تھا۔ سوختی قربانی کے لیے بے عیب نہ ضروری تھا، مگر شکرانہ کی قربانی میں نر کی قید نہ تھی۔ قربانی کا سینہ اور داہنا باز و خدام درگاہ کا حق تھا، اور وہی اس کو کھاتے تھے۔ سب چربی ماں گردوں اور دنبا کی چکتی کے قربانگاہ پر جلا دی جاتی تھی۔ کفارے کی کھال، سر، پیٹ وغیرہ عبادت خانہ کے باہر جلائے جاتے تھے۔ غربہ ایک گناہ کے کفارے میں 2 فاختہ یا کبوتر نظر کرتے تھے۔ دولت مندوں کے لیے ہر گناہ کے عوض ایک چوپا یہ مقرر تھا، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر رشک کرے تو عدالت میں مقدمہ دائر کرنے سے پہلے اس کو رشک و حد کے کفارہ میں نباتاتی نظر ابد ملانا لازم تھا۔ دغابازی کے کفار میں نر جانو لیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص بالکل مفلس ہو تو وہ کفارہ کے لیے آٹا بغیر تیل اور بخور کے لا سکتا تھا۔
बनी इसराइल का हर पहलौठा बेटा खुदा के लिए नजर था। जब वो 1 महीना का हो जाए तो माबद में हाजिर किया जाता था और वहां से वालिदैन उसको खरीद कर लाते थे। कीमत बराए नाम होती थी। हर जानवर का पहला चीह कुर्बान किया जाता था और उसका गोश्त खुदाम माबद खाते थे। अगर वो जानवर नापाक हो तो फरोख्त कर दिया जाता था। खादिम इबादत गाह को हर नापाकी से दूर रहना लाजिम था। वो मुर्दे के पास भी ना जा सकता था, बजुज़ उसके कि वो मुतवफ़ी उसका बाप, भाई, बेटिया, माँ, लड़की या बनब्याही बहन है। अगर खुदा की लड़की किसी अखलाकी गुनाह की मुरतकब हो तो वो जला दी जाती थी। सब लादियों को कल पैदावार, ज़मीन का 10वां हिस्सा और मवेशियों में अंजाइश का 10वां हिस्सा बतूर नज़र के साल बसाल मिलता था। यहूद के यहाँ हुकूक नफ्स, हुकूक माल और इस्लाह अखलाक की बाबत जदा गाना कवायद थे। हराए कवानीन और नवा का नमूना मिलाहजा हो। नसास कत्ल अमद की सजामूत है। अगर गफलत या नादानिस्तगी से हिलाकत वाक़ हो तो कातिल खूनहा अदा कर सकता हुकूक है। मुक़द्दस शहरों में पनाह ले सकता है। इस अहद के मुतवल्ली आज़म की ज़िंदगी तक खलवत गुज़ीन, मगर जब नया मुतवल्ली सजादा नशीन हो तो पहले के खून मान है। वो बेखून अपने वतन को वापस आ सकता ही। आमतौर पर क़िसास का कानून ये था कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, दानत के बदले दाख्त, हाथ के बदले हाथ, जलाने के एवज जलाना, जख्म के एवज जख्म और चोट के बदले चोट। जो शख्स अपने बाप या माँ को मारे या अन पर लानत करे वो जान से मारा जाए। रवाज था कि किसास का हुक्म सिर्फ उन हालात में दिया जाता था जब बदनीति से या बाला रादा तकलीफ पहुंचाई हो, वरना उमूमन जिस्मानी आज़ार के अवज़ जरियाना वसूल किया जाता था। अगर किसी मकतूल की लाश मिले और कातिल मालूम हो तो अकाबिर और सरदार जाए वो कुआ के करीब एक जो इन बिछड़ा जिसने मेहनत न की हो ज़ब्ह करते थे और अपने हाथ धोकर गीत गाते थे। ये कुर्बानी कत्ल का मुआवजा समझी जाती थी। किसी शख्स के खिलाफ एक ही गवाह काफ़ी न था, बल्कि 2 गवाह या 3 गवाहों के कहने से इस बात जर्म होता था। जुर्माना की दूसरी सनरा के साथ शामिल नहीं किया जाता था। तायाना की इंतहाई मिकदार हम खती। सजाए मौत शाज व नादिर दी जाती थी। नफ्स ज़हब यहूद में हसब झेल जानवरों और परिंदों का गोश्त हराम था। ऊंट हराम व हलाल, सूअर, खरगोश, चील, गध को हर किस्म का, हबाज, इकाब, बगला हर किस्म का, शतरमर्ग, हुदहद, चमगादड़, बोम, काज, जिन जानवरों की पानों की अंगलियां अलग अलग और चरी हुई हों और वो जानवर जगाली भी करते हों, उनका गोश्त हलाल है। आबी जानवरों में से वो हलाल थे जिनके पर और छलके सुन्ने हों। सब रेंगने वाले जानवर नापाक थे। जो जानवर अपनी तबी मौत से मर जाए वो हराम है, मगर परदिलीसी मुसाफिरों को यानी गैर कवाम को ये हलाया जा सकता है और आनहे के हाथ फरोख्त हो सकता है। दरंदों के फाड़े हुए जानवर का गोश्त हराम है। वो कासों के आगे फेंक दिया जाए। गैर से बचा गोश्त सब हराम है। खून का पीना हराम, चर्बी हराम, बल्कि एसाब की मोटी नसीन भी हराम। ना गुलाम खानदान का एक रुकन है। मजहबी त्योहारों में शरीक किया जाए। अगर कोई अबरानी अलाम बनाया जाए तो उसकी गुलामी की मुद्दत सिर्फ 4 साल है। 7वें बरस वो आज़ाद है। अगर वो तन्हा आया था तो नहा जाएगा। अगर मालिक के घर में शादी की तो बीवी बच्चे आका के तसर्रुफ में छोड़कर अकेला जाएगा। अगर वो आज़ादी से इनकार करे तो दरवाजे की चौखट पर उसका कान छीदा जाए और वो तमाम उम्र के लिए गुलाम है। अगर कोई शख्स बहकाकर किसी आज़ाद को गुलाम बनाने के लिए ले जा है तो उसकी सज़ा यारा मौत है। अगर कोई आँख अपने गुलाम या वंडी को ऐसा मारे कि उसकी आँख फूट जाए या दानत टूट जाए तो आँख या दानत के अवज गुलाम को आज़ाद कर दे। अगर किसी का बैल गुलाम को सेंग से जख्मी करे तो गुलाम के आका को बैल का मालिक दें। नकल चांदी तावान में ए और बैल संसार किया जाए। इस्लाह व अखलाक के अहकाम पहले दर्ज हो चुके हैं। चंद मजीद हिराएं यहाँ नकल की जाती हैं। इस्लाह तो अपने कौम के सरदार पर लानत ना बीजना। अखलाक, अगर कोई शख्स अपने हमसाया को गरीब दे या झूठी कसम खाए तो जो चीज़ जुल्म से छीनी हुआ जिसने के बारे में झूठी कसम खाई हो उसी को पूरा पूरा वापस करे और उसकी साथ 5वां हिस्सा रहा बरपा कर तुम रखाना देना और एक दूसरे से झूठ न बोलना। मजदूर की मजदूरी सुबह तक रहने न पाए, शाम ही को अदा कर दी जाए। जो परदेसी तुम्हारे साथ रहता हो उसको दिल्लीसी की तरह मानना। तुम जाद व मिंतर न सीखना और शगुन न लेना। न
अगर तुम्हारा भाई मुफलिस हो जाए तो तुम उसे संभालना। वो परदेसी और मुसाफिर की तरह तुम्हारे साथ रहे। तुम उससे सूद या नफा न लेना। तुम अपने गरीब और महताज खादिम पर जुल्म करना खिवाह। वो तुम्हारे भाइयों से हो खिवाह पर देसी गुरूब आफताब से पहले उसकी उजरत दुनिया। वो बेटों के बदले बाप मारे न जाएं और न बाप के बदले बेटे मारे जाएं। अगर कोई शख्स गड्ढा खोदे और उसका मुना न रहा है और कोई बील या गरहा उसमें गर जाए हुकूक, तो गड्ढे का मालिक तावान अदा करे और मुर्दा या जख्मी शुदा जानवर को खुद ले लिए। अगर कोई आदमी बेटर या बैल चरा ले और उसे ज़ब्ह कर डाले या फरोख्त कर दे, तो एक बैल के बदले 5 मैल और एक बहीर के बदले 4 मीटर बतूर जुर्माना के दे। अगर चोर रात के वक्त सेंध गाते पकड़ा जाए तो उसके खून का किसास नहीं। अगर चोरों के वक्त पकड़ा जाए तो उसका कत्ल जायज नहीं। चोर से माल मसरूका वापस मिले तो 2 गुना माल लिया जाए। अगर चोर के पास माल ना हो तो वो किसी अबरानी के हाथ गुलाम बनाकर फरोख्त किया जाए, यहाँ तक कि जुर्माना अदा करे। गर्मियों के अख्तिताम पर दूसरी फसल की काश्त से पहले खेतों के झाड़ झनकार जला दे जाते थे। अगर वो आग भड़क कर दूसरे शख्स के खलियान या कटली फसल या खेत को नुकसान पहुंचाए, तो जिसने आग मुश्ताइल की हो वो मुआवजा अदा करे। अगर 2 मील आपस में लड़ियां और एक मर जाए तो जिंदा रहने वाला में फरोख्त किया जाए और उसकी कीमत दोनों अलकान रास निस्फ निस्फ तकसीम कर लें। अगर मालूम हो कि इनमें से किसी बैल की आदत सींग करने करें की थी और मालिक ने उसको बांध कर नहीं रखा, तो उस मालिक को बैल के बदले बैल दुनिया होगा और मुर्दा जानवर उसको मिलेगा। साल में 3 बड़ी ईदें होती थीं। अव्वल ईद फतीर, दूसरी ईद मजमा, तीसरी ईद ख़याम। उनके अलावा 2 ईदें और थीं, ईद तजदीद और ईद पैवरम। ईद फित्र पहले महीना की 15 तारीख से शुरू होती थी और 7 दिन रहती थी। ये नज़ूल तोरीत की यादगार थी। ईद ख़याम 7वें मीन की 15वें तारीख से शुरू होती थी। ये उस अहद सरगर्दानी की यादगार थी जब बनी इसराइल हम बरस तक बयाबान व यगुस्तान में दुष्ट बीमार है थे और खैमों में जिंदगी बसर की थी। ये ईद 8 औन रहती थी। ईद तजदीद 9वीं महीना की 25 तारीख को होती थी और माबद पर शीलम की दोबारा तामीर की यादगार थी। इस रात को चरागा किया जाता था। ईद पिवरम 12वें महीना की 14 और 15 तारीख को होती थी और मलका इस्त्र की बदौलत कत्ल आम से नाजात की यादगार थी। पहली 3 ईदों में इबादतगाह सुलेमानी की हाजिरी वाजिब थी। आम तौर पर जो ज़ायरीन ईद फतीर के लिए आते थे वो ईद मुजम्मा तक पर तस्लीम में हाजिर रहते थे और शहर के बाहर दूर दूर तक खीमों का जंगल नजर आता था। ईद फतीर में 7 दिन तक यहूदी बेखमीर की रोटी खाते थे और उस परेशानी और सरसीमगी को याद करते थे जब उनके अजदाद कुछ ही पक्की रोटी कहा कि मिस्र से फरार हुए थे। उस ईद के वक्त जो कि फसल तैयार हो जाती थी और दस्तूर था कि जो कि पख्ता बालियां ईद के दूसरे दिन कुर्बानगाह पर चढ़ाई जाती थीं। हुक्म था कि एक बेऐब 1 साला ज़ेरा या भर ज़ब्ह करके मुस्लिम होना जाए, उसकी कोई हड्डी टूटने न पाए और ये गोश्त बेखमीर रोटी के साथ खाया जाए। बीत के ज़बीहा की चर्बी सुबह तक बाकी न रखना और हलवान को उसकी माँ के दूध में न पकाना। अगर किसी उज़्र से निसान की 15 तारीख को ईद न मनाई जा सके तो दूसरे महीना की 15 तारीख को ये मरासिम अदा किए जाएं जब तक तुम अपने खुदावंद के लिए पड़ा हुआ न लावनी फसल की रोटी या भना हुआ इंताज या हरी बाएं हरगुज न खाना। ईद मुजम्मा के वक्त फसल रही तैयार होती थी। गेहूं के अनबार इबादत खाना में नजर किए जाते थे। फल और अनाज कुर्बानगाह पर चढ़ाते शिकराना के गीत गाते और खुदा की हद करते थे। ईद ख़याम के मौके पर बीवरी खेमों या जो बड़ों में सुकूंत करते थे ऊपर खजूर की शाखीन लिपेटते, जहंदी की डालियां लगाते और अजदाद की बार ये पैमाई को याद करते थे कि 7वें इस मौसम में जैतून और अंगूर तैयार होते थे और वो कुर्बानगाह पर चढ़ाए जाते थे। महीना की चांद रात से यानी माह तुशरीन की पहली तारीख से यहूदियों का इदालती और कारोबारी साल शुरू होता था। इस दिन आराम का कम था। तौबा तगफार करते और इबादत गाह में कुर्बानियां हाजिर लाते रहा थे। नरसिंघा फूंका जाता था और आग जाता था और आगाज साल का ऐलान होता था। इसी माह की 10वें तारीख को फारा कारण था। 9वें की शाम से 10वें की शाम तक 24 घंटा का रोजा रखते थे। 15वें तारीख से ईद ख़याम शुरू होती थी
और उसका आखिरी दिन जश्न व ज़ियाफ़त के लिए वक्फ था। इन मुकर्रर त्योहारों के सिवा हर चांद रात के दूसरे दिन ईद मनाई जाती थी। उस रोज़ 2 सांड, 1 मेमना और 7 भीड़ें कुर्बानी के लिए हाजिर की जाती थीं। कभी कभी 1 बकरा भी बतौर कुफारा के शामिल किया जाता था। हर इसराइली का खैमा मुसाफिरों के लिए खुला रहता था। हर वारिद व सादिर की दावत करते थे और जब वो रुखसत हो तो कुछ दौर तक मुशायात भी वाजिब समझते थे। हर फसल में खीत के कुनारे की पैदावार गरबा और मुसाफिरों के लिए वक्फ थी और सीखेत के बड़ा हिस्सा से कम न होती थी। कादा था कि जो अंगूठी पक कर गिर पड़े वो गरीब और मुसाफिर का हक हो। हर हिफ्ता में मनीजर कादन इबादत गुजारी के लिए वक्फ था। उस दिन किसी किस्म का दुनीवी काम जायज़ न था। लकड़ी चुना और रोटी खाना भी ममनुआ था। शहर के बाहर 2000 कदम से ज़्यादा चलने की इजाज़त बेती योम सब्त जमा के दिन गुरूब आफताब से शुरू होता और सनीचर के दिन गुरूब के वक्त ख़त्म होता था। हर 7वां साल सब्त का बरस कहा जाता था। इस साल ज़मीन को भी आराम दिया जाता था जो उन्हें होने की इजाज़त न थी। जो फसल खीतों में उस साल खुद ब खुद पैदा हो जाए वो गरीबों के लिए वक्फ थी। इस साल कोई कर्जा इसराइलियों से वसूल नहीं किया जाता था और आज़ादी का ऐलान किया जाता था। हर गुलाम आज़ाद, हर रहन वापस बहर कर्ज मनसूख। बहुत पोशाक शामियों का लिबास ज़माना हाल में करीब करीब रही है जो कदीम हूद का था। करता ढेलाया था, पांजामा कमरबंद, सदरी, अबाम रुमाल और सरपीच। उसके अलावा एक जबह बिक्री या ऊंट के बालों का सिर से पानों तक ढांकने के लिए मौसम सरमा में इस्तेमाल होता था। वो अपने पैरा महनों के किनारे झालर लगाते और उस पर आसमानी रंग का डोरा टानिकते थे। हजरत हारून का ख़ानदान मजहबी खिदमत के लिए वक्फ था। उनका लिबास ज़्यादा तफसील से मालूम है। उनकी अबा सफ़ीद रंग के किस्तान की होती थी। कमर बंद नीला सरख या गुलाबी होता था। पाजामा जानों तक होता था। पगड़ी इबादत के वक्त सिर से उतारी न जाती थी। मुतवल्ली आज़म सिर पर ताज नमा टोपी पहनता था और उस पर अल्फाज तकदीस खुदावंद तहरीर होते थे। वो एक ज़िरतारा खुद का जबह आसमानी रंग का ज़ैब तन रखता था जिस पर 12 सुलेमानी पत्थर मुक्के होते थे। दिल के करीब वो एक सीना बंद लगाई रखता था जिस पर 12 बेश बहा जवाहिर 4 कितारों में होते थे और हर पत्थर ये एक सब्त बनी इसराइल का नाम किंदा होता था। पहली कतार में याकूत, सरख, पिखराज और गौहर शब चराग, दूसरी कतार में जुमर्द, नीलम और हीरा, तीसरी कतार में बशमशीम और याकूत, चौथी कतार में फैरूज़ा सिंह सुलेमानी और नबरजद पुसीना बंददल के लक़ब से मशहूर था और इमाम गाह में दाखिला के वक्त इसका अज़ीम मुजस्सम होना लाजिम था। और या 12 पत्थर ओरीम व तीम यानी अनार कमालात का रशिया कहलाते थे। मुश्तबे के दामन में चारों तरफ आसमानी, अर्गवानी और सरख रंग के अनार बने होते थे और उनके दरमियान सोने की घंटियां होती थीं ताकि जब मुतवल्ली आज़म मुक़द्दस तरीन हिस्सा माबद के अंदर दाखिल हो या वहां से बाहर निकले तो घंटियों की आवाज़ से खिलकत होशियार हो जाए। मुतवल्ली अज़म का पूर लिबास सीना बंद, आफूद जबह चारखाना का करता, पायजामा कमरबंद और इमामा था। वो इबाद तखाना में नंगे पायों दाखिल होते थे और 3 बार एक किसान का लिबास पहनती थीं। पायजामा और मन्नी या दोशेर, रस्तार, नकाब और बरका मामूली पोशाक थी। उनके आम पसंद ज़ेवरात ये थे फुलान, जालियां, चांद आवीज़ें, पहुंचियां, ताज, पाजिब टीके, इत्रदान, तावीज़, अंगूठियां और थे वो शायानी के कौल के मुताबिक शौक चश्मी से खरामा होती थीं। नाज रफ्तारी करती और पानो घंघरू जाती हैं। काह बनी इसराइल निकाह को फ़राइज़ मज़ही में शुमार करते थे। कफ़ायत का लिहाज ज़रूरी था। गैर कौम में शादी की इजाज़त न थी। औरत का मर्तबा मर्द से कमतर न था। यहूदी औरतें बेतकल्लुफ़ बाहर निकलतें बाज़ारों और मैदानों में फिरती थीं। अगर कि भाई साथ रहते हों और उनमें से एक बे औलाद के मर जाए तो उस मरहूम की बीवी किसी अजनबी से ब्याह निकले, बल्कि शवाहर का भाई उसे अपनी बीवी बनाए और इस औरत के जो पहला चे हो वो मरहूम भाई का बेटा कहलाई। अगर कोई शख्स अपनी बीवा भावज से ब्याह न करना चाहे तो उसकी भावज शहर के फाटक पर बुजुर्गों के पास जाए और कहे कि मेरा दीवर अपने भाई का नाम बेहाल रखने से इनकार करता है। तब इस शहर के इकाबर इस भाई को बुलाकर समझाएं। अगर वो तब भी मंजूर न करे तो इसकी भावज बुजुर्गों के सामने
उसके पानों से जूती उतारे और थूक दे, तब वो औरत आज़ाद होगी, जिसके साथ चाहे शादी कर ले। जब कोई इसराइली नई शादी करे तो हुक्म था कि वो साल भर एक लड़ाई के लिए न निकले, बल्कि अपने घर में रहकर बीवी को खुश करे। अगर कोई शख्स किसी बाकरा को बेहरमत करे तो लाजिम है कि मोहर अदा करके उससे शादी करे, जो खिलाफ वज़ा फितरी का मुरतकब हो जान से मारा जाए। जब झेल रिश्तेदारों से निकाह हराम था। दराशत माँ, बाप की दूसरी बीवी बहन रबाब की तरफ से हो या माँ की तरफ से या दोनों तरफ से होती। नवासी, बाप की बीवी की बेटी हो भी, खाला बच्ची हो, भाउज, माँ और उसकी बेटी से भी एक वक्त निकाह हराम था। साली से ब्याह उसकी बहन की जिंदगी में ममनुआ था। गम व मुसीबत में बदन नोचना ममनुआ था। बड़े बेटे को बाप की जायदाद में 2 हिस्से मिलते थे। बकिया जायदाद कल औलाद में भी सारी तकसीम होती थी। बाप को अख्तियार न था कि वो बजरिया वसीयत के किसी एक बेटे को दूसरे से ज्यादा दिलाए। अगर किसी मुतवफ़ी के सिर्फ लड़ाकियां हों तो वो कल जायदाद की वारिस होती थीं, मगर टर भी कि अपने ही खानदान में शादी करें। अगर किसी मुतवफ़ी के लड़कियां भी न हों तो करीबी रिश्तेदार वारिस होते थे। अबरानियों के सब बेटे बराबर थे। कोई खानदान नसब में ऊंचा पा नीच न समझा जाता था। जात की कोई तफरीक न थी। शहर के फाटक पर एक अबर एक मुकर्रा वक्त में जमा होते और निज़ात का फैसला करते थे। बाप को अपने बेटे या बेटी पर उसकी शादी से पहले पूरा अख्तियार था। वो अगर चाहे तो अपनी औलाद को चंद रोज के लिए रहन भी रख सकता था। बनी इसराइल गुरूब आफ्ताब से दूसरे दिन के गुरूब आफ्ताब तक एक रोज शुमार करते औकात थे। रात 3 पहर की होती थी। पहला पर गुरूब आफ्ताब से आ रही रात तक, दूसरा पर निस्फ शब से तकरीबन 3 बजे तक और तीसरा पर 3 बजे से 6 बजे तक। दिन के भी 3 पहर होते थे। पहला पर तुलुआ आफता है अबजे तक, दूसरा पर अबजे से बजे तक और तीसरा महर 2 बजे से 4 बजे तक। अमीरी बाबल से पहले यहूद में सकों का रवाज न था। सोने चांदी के वजन पर अशिया सकते की कीमत होती थी। एक नकल चांदी जमाना हाल के तकरीबन बीर के बराबर होती थी। इसी शरह हिसाब नकल सिकल वगैरह वगैरह और इन मुरूज थे। बाबल से वापसी के बाद ईरानी दरहम व दीनार फिलिस्तीन में राइज हुए। इन सकों पर एक तरफ शहनशाह ईरान की तस्वीर होती थी। एशिया कोचक में स्कूल का रवाज 7वें सदी कबल मसीह से था, लेकिन फिलिस्तीन में बनी इसराइल की वापसी अज बाबुल से पहले अलीनी 5 कबल मसीह से पहले सकों का चलन मन नहीं हुआ था। माँ सिकंदर आजम के हमला के बाद यहूदी उमसर के टालमियों और शाम के यूनानियों के मातहत हुए उस वक्त यहाँ मिस्र और इलाका उस वाहिल के सिक्के चलने लगे। शमोन मकाबी ने यरूशलेम की खुद मुख्तारी का साल कबल मसीह में ऐलान किया तो उसने जदीद सके बनाए। गालिबन यही पहले सकते थे जो मीवू ने खुद बनवाए। उनका सिकल 24 ग्रीन का होता था। है थे जो हो ने खुद नीयू, और उस पर एक तरफ अबरानी जबान में सिकल इसराइल किंदा होता था और दूसरी तरफ 3 गिल्लाला बने होते थे। जबीर मुकद्दस पर हेलियम लिखा होता था। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।